Hello CLAT PG aspirants, welcome to Vidigya After College. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So let's start with the discussion. So today we are going to discuss an important case जिसमें हम maternity leave के issue को discuss करेंगे. तो starting with the facts of the case कि अगर कोई भी person यहाँ पे हम case कौन सा discuss करने वाले हैं, we are going to discuss the case of K Uma Devi versus government of Tamil Nadu and others. So in this case the issue was कि क्या कोई government या फिर authority absolute bar लगा सकती है क्या maternity leave के respect में. यहाँ पे एक person थी A कि उमा देवी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. So she wanted to apply for the maternity leave, but the government as per the rules decided that she is not entitled to maternity leave because she already have two children. Okay, so here the rules of the government says that if the woman already has two children, she cannot avail the maternity leave. तो ये जो condition है, this condition that the woman can only avail maternity leave for two children and not more than that, तो ये जो condition थी ये यहाँ पे challenge हुई थी in this case. So see the facts. Appellant married सुरेश इन ईयर 2006. तो यहाँ पे जो पर्सन थी उन्होंने एक मैरिज करी जो 2006 में ही. उसके बाद में जो ये ए है कि अगर सपोज हम बोले कि उमा देवी हैं, उन्होंने किसी हस्बैंड से मैरिज की, उससे उनके दो सन थे. जब ठीक है कि इसके बाद में आफ्टर दिस मैरिज हैज बीन डिसॉल्व, यहाँ पे ये सपोज हम करें 2006 में हुआ, ये 2011 में हुआ. आफ्टर द बर्थ ऑफ टू चिल्ड्रन शी ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब. ठीक है, she joined the government job in 2012. After this the marriage with her first husband dissolved, and then she married another person H1, and with this they are having a with this she is having her third child. ठीक है, first two with the previous husband and the third one with the new husband. Now she wants to avail maternity leave for this child under the government rules. So now the government rejected her claim because they are saying that you can only avail the benefit for first two children and not after that. तो यहाँ पे जो first two children थे वो तो government job के पहले हुए थे, और जो third child है वो जो second husband के साथ है वो after joining the government job है. So this respect में हम यहाँ पे question discuss करने वाले हैं कि ये absolute bar with respect to maternity leave गवर्नमेंट लगा सकती है क्या. रूल्स ऐसा बता सकते हैं कि सिर्फ आपको मैटरनिटी लीव सिर्फ दो चिल्ड्रंस के लिए रिस्पेक्ट में ही मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी. दिस वाज द क्वेश्चन. और सेकेंडली यहाँ पे जो आप मैटरनिटी लीव तो आप एक फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हो बिकॉज यू हैव जॉइंड द गवर्नमेंट जॉब आफ्टर योर चिल्ड्रंस, आफ्टर टू चिल्ड्रंस. तो यहाँ पे मैटरनिटी लीव का जो बेनिफिट है वो तो आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर रहे हो. सो इस कंडीशन को देखते हुए क्या ये सही था, ये जो कंडीशन है ये सही थी कि नहीं. सी appellant married Suresh in year 2006. After the said wedlock, two children were born first in 2007 and 2011 में. She entered government job or services in 2012. यही हमने बोला कि after the birth of two children, she joined the government job as English teacher in government higher secondary school. ठीक है. Next, marriage between the two dissolved in 2017. She stated that the two children born out of the said wedlock are in the custody of the former husband. ये जो first two children थे they are in the custody with the first husband, so she does not have the custody of the two children. And now after joining the government services she is asking for the maternity leave with respect to the third child. In 2018, appellant married Rajkumar due to conceivement for her second. From her second marriage, appellant applied for grant of maternity leave to the authorities for the period of 9 months. तो यहाँ पे 9 months का आपको maternity leave मिल सकता है अगर with respect to post and pre-natal
पीरियड कि आपकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग और जब बर्थ हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद में भी सर्टेन पीरियड का आपको मेटर्निटी लीव मिल सकता है। उसके कंडीशन में द गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्रेयर ऑफ द एपिलेंट, इट स्टेटेड दैट एज पर द फंडामेंटल रूल, यहाँ पे सर्टेन गवर्नमेंट रूल्स के बारे में बताया कि जो भी जॉब से रिलेटेड रूल्स होते हैं उसमें क्या लिखा है कि आपको सिर्फ दो ही मेटर्निटी फर्स्ट टू चिल्ड्रंस के लिए ही मिल सकती है, which is applicable to the state government employees of the state of Tamil Nadu. Maternity leave is available to women state government employees, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है with respect to the state having less than two surviving children, कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको मेटर्निटी लीव का बेनिफिट जब ही मिल सकता है इफ यू आर हैविंग लेस देन टू सर्वाइविंग चाइल्ड। ठीक है, लेस देन टू सर्वाइविंग चाइल्ड, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन में फर्स्ट अगर प्रेगनेंसी है तो कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं है, सेकंड प्रेगनेंसी है तो सिर्फ आपके पास क्या है, वन सर्वाइविंग चाइल्ड है, तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ दो चाइल्ड के रिस्पेक्ट में ही आपको मेटर्निटी लीव मिल सकती है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ग्रांट ऑफ मेटर्निटी लीव फॉर द थर्ड चाइल्ड ऑन अकाउंट ऑफ एपिलेंट्स रीमैरिज, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला, बिकॉज द चाइल्ड इज थर्ड चाइल्ड और उसके रिस्पेक्ट में irrespective of the fact that the the appellant had remarried और जो चाइल्ड है वो किसी सेकेंड हस्बैंड से है, इट डज नॉट मैटर बिकॉज इट इज योर थर्ड चाइल्ड एंड द रूल सजेस्ट दैट ओनली अप टू टू चाइल्ड यू कैन बी अलाउड टू गेट दिस बेनिफिट ऑफ मेटर्निटी लीव। ठीक है, तो यहाँ पे इशू क्या हुआ, वेदर मेटर्निटी लीव डिनायल बेस्ड ऑन टू चाइल्ड नॉर्म वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इक्वालिटी एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकल 21 में भी और 14 में हम का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कि ये जो आप एब्सोल्यूट बार लगा रहे हो आफ्टर टू प्रेगनेंसीज, isn't it violating the fundamental rights of the woman, कि यहाँ पे आप बोल रहे हो द पर्सन इज अलाउड टू हैव चिल्ड्रन बट उसके रिस्पेक्ट में जो उसके एंसिलरी राइट्स है, एंसिलरी बेनिफिट्स है, वो आप करटेल कर रहे हो उससे, तो ये आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट करेगा क्या। Whether service rule, fundamental rule, barring maternity leave to women with two or more children can override statutory maternity benefit under the Maternity Benefit Act। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे Maternity Benefit Act of 1961 को भी, उसमें क्या प्रोवाइडेड है with respect to maternity leave, is there any condition with respect to the set condition कि आप दो चिल्ड्रंस के बाद में maternity leave नहीं ले सकते हो, does Maternity Benefit Act also states so। तो अगर उस कंडीशन में हम देखेंगे मैटरनिटी एक्ट में, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट बार है, तो क्या यहाँ पे जो ये रूल्स है ये उसको ओवरराइड कर सकते हैं क्या। the balance between the state population control policies and the women reproductive rights, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की साइड क्या होगी कि the government is saying that we are absolutely barring the maternity leave with respect to third child because we want to control population, और अगर हम ये benefits देंगे तो ये population control mechanism को curtail करेगा, बट उसके अगेंस्ट में वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स की जो हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव राइट्स है उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको आप कर्टेल कर सकते हो, तो ये दोनों राइट्स के बीच में हम बोलेंगे क्या बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द लीगल प्रोविजंस, आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो यहाँ पे राइट टू लाइफ में अगर हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स भी आपके पास है, यू हैव द ऑटोनॉमी विद रिस्पेक्ट टू योर रिप्रोडक्टिव राइट्स, तो ये जो एंसिलरी राइट्स है, अगर मेटर्निटी लीव नहीं मिलेगी तो क्या आप अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स का फुली इंजॉयमेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 42 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन फॉर फास्ट जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मटर्निटी रिलीफ, तो यहाँ पे आर्टिकल 42 क्या बोल रहा है कि आपको स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मटर्निटी रिलीफ, तो स्टेट की ऑब्लिगेशंस हो सकती है, ये उनको डायरेक्टिव्स है कि उनको मेटर्निटी रिलीफ के बारे में कुछ करना चाहिए, उनको ये सब प्रोग्रेस करनी चाहिए। नेक्स्ट, एज पर द रूल 101 की जो हमने डिस्कस किया, जो गवर्नमेंट का रूल है जिसमें हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो सर्वाइविंग चाइल्ड है तो फिर आप मेटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिमिलरली यहाँ पे वो स्पेसिफिक बताया गया है, मेटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू अ वुमन गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन टू लिविंग सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। ठीक है, क्या होना चाहिए, दो लिविंग सर्वाइविंग चाइल्ड है अगर, तो आप फिर मेटर्निटी लीव के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ वुमन गवर्नमेंट सर्वेंट with two surviving children born as twin in the first delivery, maternity leave shall be granted for one more delivery, कि अगर फर्स्ट डिलीवरी में ही ट्विंस हो रहे हैं या फिर अगर सपोज ट्रिपलेट्स हो गए तो क्या उनको हम काउंट नहीं करेंगे क्या। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट डिलीवरी में ट्विंस हुए हैं तो उसके बाद में भी एक डिलीवरी के लिए आपको मेटर्निटी लीव मिल सकती है।
ठीक है, सो दिस वर द रूल्स। नेक्स्ट इज द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, कि हमारे इसमें हमने इशू बनाया था कि वेदर द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट बी ओवरराइडेड बाय दिस फंडामेंटल रूल्स, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो गवर्नमेंट के रूल्स थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट क्या बता रहा है, तो यहाँ पे अगर सेक्शन 5 ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट हम देखें, राइट टू पेमेंट ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट, subject to the provision of this act, every woman shall be entitled to and her employer shall be liable to for the payment of maternity benefit at the rate of average daily wage for the period of her actual absence. That is to say, the period immediately preceding the day of her delivery and the actual day of her delivery and any period immediately following that day. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटर्निटी लीव की बात कर रहा है, जिस पीरियड के लिए आपको जो वुमेन है उनको पे किया जाएगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पीरियड द पर्सन वुड बी पेड हर salary. No woman shall be entitled to maternity benefit unless she has actually worked in an establishment of the employer for whom she claims maternity benefit for a period of not less than 8 days, 80 days in a 12 month immediately preceding the day of her expected deliveries. तो किसी भी establishment में वो person को वो woman को minimum 80 days तो work किया होना चाहिए in the 12 months period. The maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit shall be 26 weeks, of which not more than 8 weeks shall precede the day of her expected delivery. तो हम बोल रहे हैं कि ये जो पीरियड है 26 वीक्स का, ये आप कैसे ले सकते हो कि ये जब अगर हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है उससे आप बोल रहे हो नॉट मोर देन 8 वीक्स, तो यहाँ पे आप 8 वीक्स ले सकते हो। और उसके बाद का जो पीरियड है 18 वीक्स का, वो आप कहाँ ले सकते हो, आफ्टर योर डिलीवरी ले सकते हो। तो ये जो टोटल पीरियड है ये काउंट हो रहा है 26 वीक का। Provided that the maximum period entitled to maternity benefit by a woman having two or more than two surviving children। तो यहाँ पे कंडीशंस देखो कि हम बोल रहे हैं कि जनरल कंडीशन में आपको कितना मिल सकता है, 26 वीक्स का मेटर्निटी लीव मिल सकती है टू द वुमन। बट इफ शी इज हैविंग टू और मोर, if the woman having two or more देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मतलब टू चिल्ड्रन ऑलरेडी हैं या फिर उससे ज्यादा हैं, देन द वुमन शैल बी entitled to 12 weeks of which not more than 6 weeks shall precede the date of her expected pregnancy। तो हम क्या बोल रहे हैं, in case the woman is having two or more than surviving child already or children, तो उस केस में हम बोल रहे हैं then she is not entitled to 26 weeks of maternity leave but she is only entitled to 12 वीक्स ऑफ मेटर्निटी लीव। तो यहाँ पे हमने बोला कि अगर फर्स्ट चाइल्ड है तो आपको 26 वीक्स मिल सकता है, सेकंड चाइल्ड है तो आपको 26 वीक मिल सकता है, बट अगर थर्ड चाइल्ड है तो आपको कितना मिलेगा, 12 वीक्स मिल सकता है, फोर्थ है तो 12 वीक्स मिलेगा। बट क्या एब्सोल्यूट बार कर दिया है दैट द नो मैटरनिटी लीव विल बी एप्लीकेबल और कैन बी अवेल्ड बाय द पर्सन फॉर द थर्ड फोर्थ और अदर चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे अगर हम देखें इन द गवर्नमेंट रूल्स, फंडामेंटल रूल जो हम 101 की बात कर रहे थे, उन्होंने क्या बोला, सिर्फ मेटर्निटी लीव आपको फर्स्ट टू प्रेगनेंसी के लिए मिल सकता है, बाकी के लिए नहीं। बट विद रिस्पेक्ट टू मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टू प्रेगनेंसी के लिए आपको 26 वीक मिलेगा, बट थर्ड और फोर्थ के और उसके बाद के लिए आपको कितना मिल सकता है, सिर्फ 12 वीक्स ऑफ मेटर्निटी लीव मिल सकता है। मतलब हियर इट इज नॉट एब्सोल्युटली बारिंग द राइट ऑफ मेटर्निटी लीव, बट यहाँ पे हम जैसे बोल रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, तो यहाँ पे बेनिफिट्स को हमने कम कर दिया है बट एब्सोल्युटली बार किया है क्या, नहीं किया है। सो दिस रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं क्या ये जो प्रोविजन है, रूल्स हैं, क्या ये जो सेक्शन 5 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है उसको ओवरराइड कर सकते हैं क्या। a woman who legally adopt a child और with respect to adopted mother, कि यहाँ पे adoptive mother अगर कोई है कि जो जिन्होंने कोई चाइल्ड को अडॉप्ट किया है उनके रिस्पेक्ट में मेटर्निटी लीव कितनी हो सकती है, बिलो द एज ऑफ 3 months और अ कमीशनिंग मदर शैल बी इंटाइटल टू मेटर्निटी बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स। तो यहाँ पे भी क्या है, तो एनी पर्सन हु इज द अडॉप्टिव मदर और कमीशनिंग मदर जो सरोगेट करा रही है, तो उनके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे हैं कि उनको मेटर्निटी लीव कितनी मिल सकती है, 12 वीक्स की मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस केस में कोर्ट ने कैसे एनालाइज किया विद रिस्पेक्ट टू द केस जहां पे हमने बोल रहा था कि जो
फर्स्ट टू चाइल्ड है दे आर इन द कस्टडी ऑफ प्रायर हस्बैंड। सेकेंडली जो यहाँ पे जो थर्ड चाइल्ड है वो आफ्टर आफ्टर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट जॉब हुआ है, और जो फर्स्ट टू चिल्ड्रंस थे वो पहले हो चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिस्कस किया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेटर्निटी लीव हैज बीन एक्सपाउंडेड बाय दिस कोर्ट इन द केस ऑफ बी शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट commentary. This court observed that the maternity leave legislation is intended to achieve the objective of doing social justice to women workers. It enables women workers not only to subsist but also to make up her dissipating energy, nurse her children. तो यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि जो इसका रीजन था व्हाई द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट और द व्हाई मेटर्निटी लीव एज अ कंसेप्ट फॉर इंट्रोड्यूस, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे जो चाइल्ड है और जो मदर है उनको प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं, ताकि जो मदर नर्स कर रही हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल सके, सफिशिएंट एनर्जी रीगेन हो सके, इसलिए हमने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सी नेक्स्ट आर्टिकल 25 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब यहाँ पे इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या ये सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंडिया में ही है, नहीं, तो हम बोल रहे हैं उसके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अगर आप आर्टिकल 25 ऑफ यूडीएचआर देखो, आर्टिकल 10 क्लॉज 2 ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स देखो, आर्टिकल 11 देखो, आर्टिकल 16 ऑफ द कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन देखो, तो इन सब में आपको क्या मिलेगा, सर्टेन मेटर्निटी बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन मिलेगा। सच इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन लॉ इन सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस जिसमें कि क्या डिस्कस किया, a three judge bench of this court in the context of medical termination of pregnancy act acknowledged the right of women to make reproductive choices and held that such a right is facet of article 21 of the constitution। ठीक है, next, elaborating on the contours of reproductive rights, this court in this case observe that the ambit of reproductive rights is not restricted to the rights of women to have or not have children। तो यहाँ पे हमने ये तो ठीक है कि क्या अबॉर्शन कराना राइट हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स में आ सकता है। उसके बाद में क्या सिर्फ रिप्रोडक्टिव राइट्स ही कि पर्सन इज इंटाइटल्ड टू डिसाइड वेदर शी वांट्स टू हैव अ चाइल्ड और नॉट, तो ये रिप्रोडक्टिव राइट्स है, बट सिर्फ यही हो सकते हैं क्या, तो हम बोल रहे हैं नहीं, उसके साथ साथ में जो आपको एंसिलरी राइट्स चाहिए कि यहाँ पे इफ द पर्सन इज डिसाइडिंग टू हैव अ चाइल्ड तो वो तो उसका रिप्रोडक्टिव चॉइस हो गई, बट यहाँ पे अगर उसको मेटर्निटी लीव नहीं मिल रही है तो उसके कारण क्या वो डिसाइड कर पाएगी कि उसको चाइल्ड बियर करना है कि नहीं करना है। So this benefits or this beneficial legislation support the choices which she can make. It also includes the constellation of freedom and entitlement that enable a woman to decide freely on all matters relating to her sexual and reproductive health। तो अगर maternity leave नहीं मिलेगी तो the person would be hesitant to go for a child। तो उस कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव राइट्स है तो उसके साथ के उनके एंसिलरी राइट्स और बेनिफिट्स भी आप उनको प्रोवाइड करो। The Supreme Court emphasized that the maternity leave is integral to women's reproductive rights and dignity under Article 21। तो अगर हमने reproductive rights को include किया है तो maternity leave को भी हम उसका fundamental right बोलेंगे और उसके ऊपर आप absolute curtailment नहीं कर सकते हो। The court found that the mechanical application of fundamental rule flawed as it ignored the protective intent of maternity benefits। तो यहाँ पे टोटल बार जो रूल्स ने किया है वो गलत है, बट यहाँ पे जो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे लगता है क्या, दिस इज द क्वेश्चन विच यू शुड डिस्कस और विच यू शुड सी योरसेल्फ। अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में आप देखोगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ है ये जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें फैक्ट्रीज आ रही हैं, माइंस आ रहा है, प्लांटेशन आ रहा है, बट क्या यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर लगता है, तो हम बोलेंगे नहीं, ये नहीं लगता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगता है। जो उनके एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं, बट यहाँ पे इनको रेफरेंस दिया जा सकता है, इस मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट को रेफरेंस के थ्रू देखा जा सकता है, बिकॉज हियर द लेजिस्लेशन इज ड्राफ्टिंग अ लॉ विद रिस्पेक्ट टू मेटर्निटी बेनिफिट्स। तो उसको देखते हुए हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि सी द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड और द लेजिस्लेशन हैज डिस्कस्ड अ मैटरनिटी बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी लीव, सो उसको रेफरेंस में देखते हुए हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो एब्सोल्यूट बार लगा रहे हो वो सही है या गलत है। While recognizing population control as legitimate state objective, the court ruled that it must be balanced with individual constitutional rights. So there has to be balance between the population control scheme and the reproductive rights of a woman। The court
interpreted that Maternity Benefit Act as allowing varied leave duration based on the number of children, not an outright denial as the Tamil Nadu rule did. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में अगर आप देखोगे तो हमने यही देखा था कि फर्स्ट टू के लिए आपको 26 वीक्स मिल सकता है और उसके बाद में आपको 12 वीक्स का मेटर्निटी लीव मिल सकता है. बट हियर द रूल्स एब्सोल्युटली बार द मेटर्निटी लीव विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन आफ्टर 2. The court observed that Uma Devi's previous children were born before her government services and are under the custody of father. Hence, her present pregnancy was her first as a government employee. तो यहाँ पे हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैटरनिटी लीव के लिए बेनिफिट दे रहे हैं. तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनके जो चाइल्ड थे बिफोर हर हर ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट सर्विसेज था और यहाँ पे जो चाइल्ड था फर्स्ट है इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, तो उनके रिस्पेक्ट में तो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए. The court overruled the division bench and ordered Tamil Nadu to grant maternity leave, and it established that maternity leave is a constitutional right linked to reproductive autonomy, meaning service rules cannot curtail it rigidly. यही हम बोल रहे हैं कि आप एब्सोल्यूट बार नहीं लगा सकते हो उसके ऊपर. द रूलिंग अलाइज डोमेस्टिक लॉ विद इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी की जो हमने यूडीएचआर देखा, उसके बाद जितने भी हमने इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स देखे उसमें भी आपको मैटरनिटी बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन मिलेगा. सो हियर वी आर the court aligned the decision with the domestic law and the international aspect for the maternity benefits. ठीक है. सो ये था आज का जजमेंट. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विदिज्ञ आफ्टर कॉलेज. बेस्ट ऑफ लक.